Assalamu alaikum, dear students of 8th class. As you know, yeah, you are well aware that we are reading the chapter that is Mineral and Power Resources, chapter number 3 of 8th class, that is Mineral and Power Resources. So far, we have discussed many topics that is about this chapter. That was minerals first. What are minerals? They are naturally organic substance having a definite chemical composition which are beneath the earth or under the rocks. After that, we read another chapter that was types of minerals. So, how many types of their minerals? We have come to learn that uh, one is that is ferrous minerals, non-ferrous minerals, and non-metallic minerals. And after that, we come to the topic that was distribution of minerals. Minerals are distributed on the earth because the surface of the earth is not even, it is unevenly distributed, so these resources are also not equally distributed because the surface of the earth is not flat. It is not flat everywhere. There are mountains, there are valleys, there are plateaus, there are deserts, there are oceans, there are lakes, there are ponds on this earth. So landforms on the earth, there are different landforms on the earth, so that's why distribution of minerals is also not equally distributed. Distribution of minerals in India, we have also come to learn about these things. And after that, we are use of minerals. We also come to learn that minerals are used in different ways in our lives. Conservation of minerals was another topic. That how should we conserve them because these are limited, and we should use them judiciously or carefully to save for them in the future generation for future generation. So conservation of minerals. After that, it is conventional sources. We are reading that's conventional sources, and we are now today we are going to discuss about petroleum. We are going to discuss about petroleum. Now, what is petroleum? It is a conventional source of energy. Conventional source of energy, what does it mean? It means that we are using it for so many long time. Our ancestors have used it, and our grandparents also used it, and today we are using it. So that's conventional source of energy का मतलब होता है कि जिसे हमें काफ़ी वक्त से इस्तेमाल करते आ रहे हैं. पेट्रोलियम की बात करेंगे. It is found between the layers of rocks and is drilled from the oil fields located offshore and coastal areas. तो पेट्रोलियम असल में है क्या? पेट्रोलियम को अगर देखेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ जस्ट लाइक ए कंपाउंड वर्ड. इट इज जस्ट लाइक ए कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड वर्ड मीन्स जो दो लफ्जों से मिलकर बना होता है. सो ये दोनों जो लफ्ज हैं ये ग्रीक या ये दोनों लफ्ज जो हैं ये लेटिन वर्ड हैं. ये दोनों लफ्ज जो हैं लेटिन वर्ड हैं, लातिनी जबान से ये लिए गए हैं. एक है पेट्रो और दूसरा है ये ओलियम. एक है पेट्रा और दूसरा है ये ओलियम. तो पेट्रा का मतलब है राख और ओलियम का मतलब होता है ऑयल. पेट्रा का मतलब होता है राख और ओलियम का मीनिंग है ऑयल. तो अब इसकी मीनिंग क्या हो गई? पेट्रोलियम की मीनिंग हो गई राख, ऑयल. पेट्रा मीन्स रॉक, और इसके अलावा जो पेट्रा उसके बाद ओलियम जो है, तो ओलियम का मतलब क्या होता है? ऑयल. ओलियम का मतलब होता है ऑयल. सो नाउ इट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज नाउ रॉक, ऑयल. तो दैट्स इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स. आप ही पता है कि अब किसी कहाँ का पाया जाता है, क्योंकि इसकी तो हमने मीनिंग पढ़ी कि ये रॉक्स के लेयर्स में पाया जाता है. और इसके अलावा is derived from the oil fields located in offshore and coastal areas. इसको हम कैसे निकालते हैं? क्योंकि ये जो भी मिनरल्स हैं, these are beneath the earth, these are under the surface of earth, उसको हम बाहर निकालते हैं. तो बाहर निकालने के बहुत सारे मेथड आपने बिल्कुल उनके बारे में तफसील से पढ़ा. तो इसको ड्रिलिंग के जरिए हम बाहर निकालते हैं. हम डीप बोर्स बनाते हैं ज़मीन के अंदर. बहुत गहरे, हमें बहुत नीचे जाना पड़ता है, गहरे कमे किस्म के खोदने पड़ते हैं ड्रिलिंग के जरिए. उसके बाद ये ऊपर से लाए जाते हैं. तो इस तरीके से हम इनको ला सकते हैं. ये ऑफ शोर भी हो सकते हैं, समंदर के दूर से भी हो सकते हैं, कोस्टल एरिया में भी होते हैं, और इसके अलावा ऑफ शोर भी हो सकते हैं, इसके आसपास इलाकों में हो सकते हैं. इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड is derived from the oil fields located in offshore and coastal areas. This is then sent to refineries.
रिफाइनिंग का मतलब होता है कि ये जो हम निकालते हैं जब ज़मीन से, तो ये कच्चा होता है, ये खाम होता है, और उसके बाद उसको हम मशीनों में भेज देते हैं साफ करने, ताकि ये हमारे पास उसूल में पेश आए कि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे हमारे पास आता है आयरन, तो आयरन जब जमीन के नीचे आयरन और होता है, उसके बाद हम उसके ऊपर जो जंग लगी होती है, मिट्टी लगी होती है, जो सैंड इसके ऊपर होती है, उसको हम ठीक करते हैं, उसको साफ करते हैं। उसके बाद उसको यानी कि मशीनों में बेचते हैं, उसके बाद उसको ठीक करते हैं, उसके बाद हम उसको यूसेज के काबिल बनाते हैं, इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। तो इस तरीके से हम पेट्रोलियम का भी कर सकते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग के जरिए उसके बाहर निकालते हैं, उसके बाद इसको सेट किया जाता है, इसको भेजा जाता है, मुझे मशीनों में भेजा जाता है ताकि वहाँ से रिफाइन होकर आए, साफ होकर आए। विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, जिससे क्रूड ऑयल उसकी सूरत में होता है, उसके बाद उसको साफ किया जाता है, हमारे पास अच्छा तेल आ जाता है, खाने का तेल आ जाता है, दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। एंड प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें वो नहीं है कि जिसको हम खाने में इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कि रिफाइनरी जो होता है कि कभी कभी आप कहते हैं कि रिफाइनरी तेल है, खाने के लिए भी हम रिफाइनरी का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम साफ करते हैं। तो पेट्रोल को भी हम रिफाइन कर सकते हैं, तो ये दूसरे पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल तो बहुत सारी चीज़ें हम इससे बना भी सकते हैं, और आजकल ये तेज़ रफ्तार दुनिया है, इसमें ये काफ़ी इसका इस्तेमाल हो रहा है, और ये वैल्यूबल ही काफ़ी है। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे हम बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे डीजल भी इससे निकलता है, पेट्रोल भी इससे निकलता है, केरोसिन भी इससे निकलता है, वैक्स भी इससे हम बना सकते हैं, और इसके अलावा प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स जो है, एक किस्म की जो ग्रीस होती है, तो वो भी हम इससे बना सकते हैं, इससे हासिल कर सकते हैं। किससे? पेट्रोलियम से। बहुत सारी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स। अब जो पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोलियम जो है, और इसके अलावा इससे जो चीज़ें बनती हैं, पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं, आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड। क्यों कहते हैं ब्लैक गोल्ड? क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते हैं। पेट्रोलियम भी काफ़ी महंगा है, और इससे जो चीज़ें बनती हैं वो भी महंगी होती हैं। इसका मतलब ये होता है पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। तो उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे देश हैं, ऐसी कंट्रियां हैं जो ज़्यादा तादाद में, जहां से इसकी पैदावार ज़्यादा तादाद में होती है। तो बहुत सारे मुल्क हैं जहां पर इसकी पैदावार इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर, मिसाल के तौर पर ईरान है, इराक है, सऊदी अरबिया है, कतर है, यूएसए है, रशिया है, वेनेजुला है, एंड अल्जीरिया। ये दुनिया में वो कंट्रियां हैं जहां पर पेट्रोलियम जो है बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, और इस वजह से इनकी जो तरक्की है, इनकी तरक्की का जो राज है वो यही है, क्योंकि तेल के कम यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस तरीके से आज जो है ये इस तेज़ रफ्तार दुनिया में, क्योंकि ये काफ़ी काम आता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इससे बनती हैं, तो उसी इनकी तरक्की का राज भी यही है कि यहाँ पर तेल के कमे जो है ज़खायर पाए जाते हैं, और ये इससे क्या कहते हैं बेचते हैं, उसके बाद ये काफ़ी पैसा हासिल करते हैं और तरक्की करते हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर ये तेल निकलता है। इसमें एक है जिसका दिग्बोई इन आसाम में है, इसका मुंबई हाई जो है इन मुंबई में है, और इसके बाद डेल्टाज जो हैं कृष्णा एंड गोदावरी के जो डेल्टाज हैं, तो हिंदुस्तान में इन्हीं जगहों पर पाया जाता है। फिर से दोहराते हैं कि इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है। इंडिया में जिन जगहों पर ये पाया जाता है उसमें दिग्बोई एक जगह है जो आसाम में पाई जाती है, और इसके अलावा मुंबई है जो मुंबई में पाई जाती है, उसके बाद डेल्टाज हैं कृष्णा के, और इसके अलावा गोदावरी के जो डेल्टाज हैं वहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम क्या है? इट इज़ ए लैटिन वर्ड जो है, तो पेट्रा एंड रॉक। तो पेट्रा मीन्स रॉक, एंड ओलियम मीन्स ऑयल। सो दैट्स पेट्रा मीन्स रॉक ऑयल, पेट्रा मीन्स रॉक ऑयल। सो इसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ वेरी मच वैल्यूबल, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, इस वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो उसके बाद नेचुरल गैस है। उसके बाद नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ साथ जब हम पेट्रोलियम को निकालते हैं तो इसके जखायर के साथ साथ ही नेचुरल गैस को भी निकाला जाता है, नेचुरल गैस को भी ऊपर लाया जाता है। तो नेचुरल जो गैस है ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है। नेचुरल गैस जो है ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है।
तो इसमें ज़्यादा जो तादाद ज़्यादा है वो है हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन की ज़्यादा तादाद इसमें है। तो हमारे इसमें जो गैसें हैं उसमें मीथेन भी है, ऑक्सीजन भी है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। किसमें? नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ जब इसको बाहर निकाला जाता है तो डिपॉजिट यानी कि इसके जो डिपॉजिट होते हैं जब इनको बाहर निकाला जाता है तो उनके साथ ही नेचुरल गैस भी निकाला जाता है। रिलीज इट व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जब हम उस क्रूड ऑयल को यानी कि जो खाम होता है, जो ज़मीन के नीचे होता है, जब उसको बाहर लाया जाता है पेट्रोलियम को, तो उसके साथ साथ नेचुरल गैस भी है वो भी हासिल किया जा सकता है। तो नेचुरल गैस क्या है? ये मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है और इसमें मीथेन भी है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हाइड्रोकार्बन ज़्यादा तादाद में इसमें पाए जाते हैं। दोबारा it can be used as a domestic fuel. It can be used as a domestic fuel. यानी डोमेस्टिक फ्यूल का मतलब ये हम घरेलू तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आजकल इसका इस्तेमाल होता है, बेतहाशा इस्तेमाल इसका होता है। तो हम इसको डोमेस्टिक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडस्ट्री में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं पूरे वर्ल्ड में, जो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, जो ज़्यादा तादाद में, जहाँ ज़्यादा तादाद में नेचुरल गैस जो है पाया जाता है, तो वो है रशिया है, नॉर्वे है, यूके है और इसके अलावा द नीदरलैंड्स है। यहाँ पर ज़्यादा तादाद में क्या पाया जाता है? नेचुरल गैस पाया जाता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, अपनी कंट्री की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी बहुत सारी जगहों पर ये नेचुरल गैस पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसलमेर है, कृष्णा है, इसके अलावा गोदावरी है। ये जो जगह है ये हिंदुस्तान में यहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया? नेचुरल गैस। इसके गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है, त्रिपुरा में पाया जाता है। उसके अलावा सम एरियाज ऑफशोर जो है बम्बई से यानी कि जो समुद्र के साहिल से थोड़ी दूरी पर है वहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज लेड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जो नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं तो आजकल के दौर में इसका कंजप्शन जो है, इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हम करते हैं क्योंकि डोमेस्टिक फ्यूल है। तो पहले हम ज़्यादा फायरवुड का इस्तेमाल करते थे, अब इसकी जगह इसने ले लिया। तो अब जो इस्तेमाल होता है इसका तो बेतहाशा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसे क्या है कि ये जो फॉसिल फ्यूल है इनको हम तो रिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़मीन के नीचे होते हैं। तो इस वजह से ये लिमिटेड है, इनका स्टॉक जो लिमिटेड है। तो अगर ये एग्जॉस्ट हो गए एक बार तो दोबारा से हम इनका मुँह भी नहीं दे सकते, इसको दोबारा से हम नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से अब क्योंकि हमको एक इस तरीके से इस्तेमाल इनका हो रहा है तो वो क्या है, वो एक अलार्मिंग रेट है। यानी कि वो खतरे की घंटी है कि हो सकता है कि फ्यूचर में हम इसके इतनी कमी हो जाएगी कि शायद हम दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें कंजर्वेशन मेथड अपनाने होंगे कि हम इसको कैसे कंजर्व करें। बहुत सारे इससे मेथड हैं जो मैंने आपको बताए थे, पहले भी बताए थे कि इसको कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं। दोबारा, इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज लेड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। अब ये बहुत, यानी कि इसका मतलब है कि डिप्लीशन का मतलब है कि ये गायब होता जा रहा है, ये बहुत कम होता जा रहा है दुनिया में, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस वजह इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। CNG गैस भी हम इसको कह सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इज इको फ्रेंडली। ये क्या है? ये दूसरा है कि इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब ये माहौल के साथ जो है ये इसमें काफ़ी पोल्यूशन जो है, काफ़ी जो पोल्यूशन है वो रेट इसमें बहुत कम है। ये लेस पोल्यूटेंट से, ये लेस पोल्यूटेंट है, ये लेस पोल्यूशन है। इसका मतलब होता है कि ये पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम एंड एज कम्पेयर टू डीजल। अगर हम डीजल की बात करेंगे, पेट्रोलियम की बात करेंगे तो क्योंकि वो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, वो हवा माहौल को आलूदा कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो ये हवा को भी ज़्यादा आलूदा नहीं करता है और इसके अलावा माहौल को भी ज़्यादा आलूदा नहीं कर देता है। इस वजह से हम इसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इको फ्रेंडली है, ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। दैट्स कॉल्ड इज इको फ्रेंडली। नेचुरल गैस को हम कहते हैं ये इको फ्रेंडली भी है, यानी कि माहौल के साथ ये हमारा जो माहौल है उसको यानी कि साफ रखने में, या हम कहेंगे साफ तो नहीं रख सकता लेकिन बहुत ही कम तरह से उसको ये अफेक्ट करता है, बहुत ही कम तरीके से इफेक्ट कर सकता है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज लेड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इज इको फ्रेंडली एज इट काज लेस पोल्यूशन दैन पेट्रोलियम। क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन करता है, डीजल भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है।
लेकिन वो भी एक किस्म क्या है, वो नेचुरल गैस के साथ हम उसको निकालते हैं। नेचुरल गैस के साथ पेट्रोलियम जो है, डीजल जो है, हम उसको ऊपर जब लाते हैं तो पेट्रोलियम और डीजल के साथ साथ नेचुरल गैस भी हम हासिल करते हैं। तो अगर हम देखेंगे इस पेट्रोलियम और डीजल को, तो पेट्रोलियम और डीजल जो है कि ये इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये माहौल को बहुत हद तक ख़राब कर देते हैं। लेकिन नेचुरल गैस जो है ये इको फ्रेंडली है, ये उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है जिस तरीके से ये नुकसान करते हैं माहौल को। तो बहरहाल उसके बाद है हाइडल पावर। उसके बाद है हाइडल पावर, एक और कन्वेंशन सोर्स में पढ़ेंगे हाइडल पावर। तो हाइडल पावर क्या है? हाइडल पावर है कि वो यानी कि जो ब्रेन होता है, जो बारिश होती है या जो दरिया में जो पानी होता है, उसको हम डैम में स्टोर करते हैं। उसको हम एक डैम में स्टोर करते हैं। उसके बाद उस वाटर को हम ऊपर हाइट के जरिए, ऊपर हाइट हाइट पर क्या नीचे फेंक देते हैं। एक हाइट हम बनाते हैं। उसके बाद पाइप्स के जरिए, यानी कि जो हम पाइप इस्तेमाल करते हैं, पाइप्स के जरिए उसको यानी कि पानी के फ्लो को नीचे डाल देते हैं, क्योंकि उसमें फोर्स आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई उसमें आ जाता है। उसके बाद वो टरबाइन पर, वो पानी जो है वो टरबाइन पर लग जाता है। आप अपनी किताब में देख सकते हैं, जियोग्राफी की बुक है, वहाँ पर पिक्चर दी गई है कि किस तरीके से ये जो पानी होता है, रेन वाटर होता है या दरिया का जो पानी होता है, उसको डैम में स्टोर किया जाता है। उसके बाद उसको एक हाइट पर बनाया दिया जाता है, यानी कि उसको उसके जरिए पानी को नीचे डाला जाता है। हाइट पर पानी को नीचे डाला जाता है उन पाइप्स के जरिए। वहाँ पर फोर्स क्रिएट हो जाता है पानी के अंदर बहुत ज़्यादा। उसके नीचे जो टरबाइन लगी होती हैं वो मूव करती हैं, और जब टरबाइन मूव करती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अगर हम टरबाइन को यहाँ देखें, जो ब्लेड्स इसके होते हैं, अगर इसके ब्लेड्स को देखेंगे, जो ब्लेड्स इसके होते हैं, इस टरबाइन के अगर जो ब्लेड्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं, तो इस पर जब पानी पड़ जाता है, बहुत ज़ोर से पानी पड़ जाता है, तो ये ब्लेड्स मूव करते हैं। वो जब ये मूव करते हैं तो जनरेटर मूव करता है। तो उसके बाद जो जनरेटर लगा होता है वहाँ मूव करता है तो बिजली पैदा होती है। उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उस बिजली को जो पानी से हम बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इस तरीके से बनाते हैं। हाइड्रो पावर के में जो हम बिजली हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो हम पानी से हासिल करते हैं। पानी जो है वो ऊपर ऊंचाई से नीचे डाला जाता है, पाइप्स के जरिए नीचे डाला जाता है। उसके क्योंकि उसमें ज़्यादा फोर्स आ जाता है, यानी फोर्स का मतलब उसमें ज़्यादा ताकत आ जाती है। उसके बाद वो ब्लेड्स जो नीचे लगे हुए होते हैं, जो टर्बाइन्स लगे होते हैं, उसको वो मूव करता है। ये मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से ये मूव करते रहते हैं। करते हैं उस वक्त। उसके बाद बिजली बनती है, तो उस बिजली को हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है इसकी कि रेन वाटर river water stored in dams is made to fall from heights through pipes or turbines blades placed at the bottom of the dam. So the moving blades then turn the generator to produce electricity. So this is called hydroelectricity. इसको कहते हैं hydroelectricity. उसके बाद जो पानी यहाँ से डाला गया, अब जो पानी ऊपर पानी जो पाइप्स में था, जो पाइप्स के जरिए नीचे आ गया, वो जो पानी यहाँ से नीचे आ गया मिसाल के, अब ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी जो नीचे जाता है, अब पानी बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, तो वो पानी भी ज़ाया नहीं होता। उस पानी को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस पानी को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पानी वहाँ से खारिज होता है, जो हमने इस्तेमाल किया, हमने बिजली हासिल की, उसके बाद जो पानी अब बाकी जो बचता है, तो उस पानी को अब किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? उसके लिए इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम दो काम इससे लेते हैं। एक तो ये है कि हम इससे बिजली भी हासिल करते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद दूसरे पर्पज़ के लिए, यानी कि हम इसको इरिगेशन के लिए इरिगेशन का मतलब हम उसको आबपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो खेत हैं, तो उस खेतों में उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। उसके बाद कल दूसरे टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। फी अमान अल्लाह।